Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice a cloze test based on SSC CHSL 2024. CHSL 2024 में पूछे गए एक cloze test की हम आज practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए passage में कुछ blanks हैं, उनको fill करना है. एक बार हम पैसेज रीड कर लेते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि पैसेज है किस बारे में. Once upon a time, there was a man dash used to tell the fortunes of people. One day, he was telling the fortune as usual when a man came to him and said, "Somebody dash broken the door of your house and has stolen many valuables. Go home at once." The fortune teller was dash shocked to hear the news. He couldn't utter a word out of shock. He just ran to his house as fast as he could. He was in so much hurry that he left all his things behind. Now one of the customers saw him rushing and dash. Every day he dashed the fortunes of so many people, but today he couldn't see his own future. The fortune teller felt very embarrassed. ठीक है, तो ये हमने पैसेज रीड किया. ये है एक फॉर्च्यून टेलर के बारे में. ये हमें सीख बताया. एक ऐसे पर्सन की बात करता है जो फॉर्च्यून के बारे में बताता है, मतलब भाग्य के बारे में बताता है, किस्मत के बारे में, भविष्य के बारे में वो लोगों को बताता था. तो उसके बारे में हमने पैसेज. ठीक है, तो फिर बार रीड करते हैं और ब्लैंक्स डिस्कस कर लेते हैं. Once upon a time, मतलब एक बार की बात है. Once upon a time, there was a man, एक पर्सन था, एक आदमी था. Used to tell the fortunes of people, जो फॉर्च्यून बताता था लोगों का, मतलब लोगों के भाग्य के बारे में बताता था. फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? भाग्य, किस्मत. ठीक है, तो लोगों के भाग्य के बारे में, उनके भविष्य के बारे में बताता था. One day he was telling the fortune as usual, मतलब एक दिन वो फॉर्च्यून बता रहा था, मतलब लोगों के भाग्य के बारे में बता रहा था. लोग उनसे पूछ रहे थे. एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह वो फॉर्च्यून के बारे में बता रहा था. When a man came to him and said, जब एक व्यक्ति उसके पास आया. When a man came to him and said, और उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा जो उसके पास आया फॉर्च्यून टेलर के, somebody dash broken the door of your house. मतलब somebody dash, किसी ने dash broken the door of your house, आपके घर का दरवाजा तोड़ दिया है. And has stolen many valuables. Stolen मतलब चुरा गया है. Many valuables मतलब कई कीमती चीजें वो चुरा गया है. Valuables मतलब कीमती चीजें जिनका कीमत, प्राइस ज्यादा हो, वैल्यूएबल हो, उनकी ज्यादा वैल्यू हो. So somebody has broken the door of your house and has stolen many valuables. घर का दरवाजा तोड़ दिया और कीमती चीजें चुरा गया. Go home at once. जल्दी से घर जाओ, भी अभी घर जाओ. Go home at once. तो ठीक है, तो बताना है ब्लैंक में क्या आंसर आएगा. shall have, had, have, has. Somebody shall have broken the door of your house, had broken the door of your house, have broken the door of your house और has broken the door of your house. क्या होगा इसका आंसर, आप सोचिए. फर्स्ट ब्लैंक का भी सोच लेना. Once upon a time there was a man who used to tell the fortunes of people, whom used to tell, by whom और whose. क्या होगा इन दोनों ऑप्शंस, इन दोनों ब्लैंक का क्या आंसर होगा, सोचिए जब तक हम थर्ड ब्लैंक डिस्कस करते हैं. The fortune teller was dash shocked to hear the news. तो फॉर्च्यून टेलर था जो भविष्य बताने वाला, भाग्य बताने वाला जो था. he was dash shocked, वो dash शॉक हो गया, मतलब एकदम हैरान परेशान हो गया, हक्का बक्का सा रह गया. to hear the news, ये बात सुन के, खबर सुन के. he couldn't utter a word out of shock. utter मतलब होता है बोलना. तो मतलब इतना वो शॉक हो गया, इतना हैरान परेशान हो गया, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला. He couldn't utter a word out of shock. एक शब्द भी वो नहीं बोल पाया. He just ran to his house. वो अपने घर की तरफ भागा. So select the most appropriate option to fill blank 3. The fortune teller was dash shocked to hear the news. So less shocked. So more shocked.
मैनी शॉक्ड, क्वाइट शॉक्ड। ठीक है, सो लेस, सो मोर, मैनी, क्वाइट। He ran he just ran to his house as fast as he could. मतलब जितना जल्दी हो सका वो अपने घर की तरफ भागा, as fast as he could. जितनी जल्दी वो भाग सकता था उतनी जल्दी अपने वो घर की तरफ भागा. He was in so much hurry, वो इतनी जल्दी में था, so much hurry, इतनी जल्दी में था, that he left all his things behind, कि वो अपनी सारी चीजें वहीं छोड़ गया, कि वहीं छोड़ के सारी चीजें भाग गया था, वो अपने घर की तरफ दौड़ा. Now one of the customers saw him rushing and dash. अब एक कस्टमर ने, जो लोग उसके पास आते थे, saw him rushing, उसको वैसे भागते हुए दौड़ते हुए देखा, and dash, और उसने डैश किया. Select the most appropriate option to fill blank for. And comments, commented, commenting, comment. Comments, commented, commenting, comment का आंसर होगा. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट लाइन. Every day he dashed the fortunes of so many people. रोज वो डैश करता है fortune of so many people, तो कई सारे लोगों का भाग्य. But today he couldn't see his own future, पर आज वो अपना ही भविष्य नहीं देख पाया. The fortune teller felt very embarrassed. तो fortune teller को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई. He felt very embarrassed. कि वो सबका भविष्य बता रहा था, सबका भाग्य बता रहा था, पर अपना ही वो फ्यूचर उस दिन नहीं देख पाया. So select the most appropriate option to fill blank 5. Every day he dashed the fortunes of many people. Tell, tells, telling, told. Tells, tells, telling, told का आंसर आएगा. Okay? So I hope आपने जो ब्लैंक था इस ऑप्शन सोच लिया होगा कि आंसर आएगा सब में. एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं. Once upon a time there was a man in. समय की बात है कि एक व्यक्ति था. Dash used to tell the fortunes of people. जो लोगों का भाग्य बताता था. Fortune of people. तो select the most appropriate option to fill blank 1. ये आंसर आएगा. Whose, whom, by whom, who. Once upon a time there was a man who's used to tell the fortune of people, whom used to tell the fortune of people, by whom और who. ठीक है, देखो फिर इसका मतलब होता है किसका. लाइक whose pen is this, मतलब ये किसका पेन है. उसका मतलब होता है किसका. whom का यूज एक ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है. ठीक है, लाइक whom did you met yesterday, कल तुम किससे मिले थे, एक ऑब्जेक्ट की तरह उसका यूज करते हैं. बाय whom का मतलब होता है किसी के द्वारा. ठीक है, बाय whom was this painting made, ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, मतलब किसने बनाई. तो बाय whom का यूज होता है कोई चीज किसी के द्वारा दी जाए. और who का मतलब होता है कौन या फिर जो, है ना. who का यूज हमें सब्जेक्ट की तरह करते हैं सेंटेंस में. अगर यहाँ पे देखो, once upon a time there was a man, अगर हम यहाँ पे who लगाएं, who used to tell the fortunes of people, तो एक सब्जेक्ट की तरह हम उसको यूज कर रहे हैं. who used to tell मतलब जो कि फॉर्च्यून बताता था, लोगों के भविष्य, उनके भाग्य के बारे में बताता था. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा who used to tell the fortune of people. वो खुद सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, खुद फ्यूचर बता रहा है लोगों का. बाय whom तो मतलब होता है किसके द्वारा. यहाँ पे वो सेंटेंस नहीं आ रहा. whose मतलब किसको. ठीक है, किसका. तो यहाँ पे who आ जाएगा हमारा आंसर. So one day he was telling the fortunes as usual. वो हमेशा की तरह फॉर्च्यून बता रहा था, भाग्य बता रहा था. When a man came to him, जब एक व्यक्ति उसके पास आया, and said, उस व्यक्ति ने कहा, आंसर हो जाएगा. Somebody dashed the broken the door of your house and has stolen many valuables. Go home at once. Somebody dashed the broken the door of your house. क्या आंसर होगा. Shall have, had, have, has. Shall have, had, have, has. क्या आंसर आएगा इसका. Shall have, had, have, has. देखो अगर आप यहाँ देखिए आगे इस पे, somebody dash broken the door of your house and has stolen many valuables. तो यहाँ पे has के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया हुआ है. तो इस पूरे सेंटेंस में हम has के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे.
अगर हम देखें ब्रोकन, ब्रोकन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, उसके साथ हैज या हैड का यूज होता है। या इस एम आर का पैसिव वॉइस में होता है, लेकिन ये सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में ही है ना। तो यहाँ पे हैज ब्रोकन हो जाएगा आंसर, क्योंकि अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे हैज स्टोलन लिखा है। somebody broken the door of your house and has stolen many valuables। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा रहा है इस सेंटेंस में। तो उससे पहले भी हम हैज का यूज करेंगे। somebody has broken the door of your house and has stolen many valuables। had का यूज पास्ट में करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हम आगे भी हैज का यूज किया हुआ है प्रेजेंट में, तो यहाँ पे हैज का ही यूज होगा। शेल हैव तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात तो नहीं कर रहे। देखोगे वो तो ये पार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में है। इन्वर्टेड कॉमर्स में मतलब किसी का कथन है, उसने ऐसा कर दिया। जब हम किसी की कही हुई बात कहते हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में बात की जा रही है, सो हैड नहीं होगा, शेल हैव नहीं होगा। ठीक है, हैज आंसर होगा। हैव आंसर क्यों नहीं हो सकता? हैव भी तो प्रेजेंट फॉर्म में है, क्योंकि somebody सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। हैव प्लूरल वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिस्कस किया था हमने। हैव सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब होता है, तो somebody जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। एक की बात हो रही है कि किसी ने दरवाजा तोड़ दिया और कीमती चीजें चुरा ली, एक की बात हो रही है। तो somebody सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो हैव प्लूरल वर्ब है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसका हैज। ठीक है, ऑप्शन 4 हैज। आगे देखते हैं। द फॉर्चून टेलर वॉज डैश शॉक्ड टू हेयर द न्यूज। तो जो वो भविष्य बताने वाला, भाग्य बताने वाला था, ही वॉज डैश शॉक्ड टू हेयर द न्यूज। न्यूज सुन के वो शॉक हो गया, मतलब हो गया, हैरान परेशान हो गया। तो क्या आंसर होगा? सो लेस शॉक्ड, सो मोर शॉक्ड, मैनी शॉक्ड, क्वाइट शॉक्ड। लेस, सो लेस, सो मोर, मैनी, क्वाइट। वो लेस का मतलब होता है कम, मोर का मतलब ज्यादा, मैनी का मतलब नंबर के लिए करते हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट्स या मैनी, मैनी गर्ल्स, मैनी बॉयज, एक नंबर के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए मैनी का यूज करते हैं। और क्वाइट मतलब हो गया थोड़ा शॉर्ट। सो क्वाइट शॉर्ट क्या आंसर होगा इसका? क्वाइट शॉर्ट, सो लेस, सो मोर, मैनी। देखो, सो लेस, मोर का यूज हम क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं, लेस का यूज क्योंकि कोई क्वांटिटी तो नहीं बताई जा रही है ना, कि ज्यादा है कम है, क्वांटिटी बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ तो हम उसके शौक के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी मात्रा नहीं बता रहे, तो लेस और मोर आंसर नहीं होगा। मैनी भी आंसर नहीं होगा, कि मैनी हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। यहाँ तो हम उसके शौक होने की बात बता रहे हैं, कोई काउंटेबल नाउन कुछ गणना नहीं की जा रही, काउंट नहीं किया जा रहा। ठीक है, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी फ्रेंड्स, कोई काउंटिंग की बात यहाँ पे नहीं है, कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, तो मैनी भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा क्वाइट। ही वॉज क्वाइट शॉक्ड टू हेयर द न्यूज। He could not utter a word out of shock। वो इतना परेशान हुआ कि हैरान परेशान हो गया, वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। He just ran to his house। वो अपने घर की तरफ दौड़ा। आंसर हो जाएगा क्वाइट। As fast as he could। जितनी जल्दी हो सकता था वो अपने घर की तरफ भागा। He was in so much hurry। वो इतनी जल्दी में था that he left all his things behind। कि अपना सामान वहीं छोड़ गया था। Now one of the customers saw him rushing and dash। एक कस्टमर ने उसे दौड़ते हुए देखा और डैश किया। And comments, commented, commenting, comment, comments, commented, commenting, comment। One of the customers saw him rushing and dash। तो कमेंटिंग का यूज अगर हम करते तो उसके साथ कुछ इज एम आर लगाते हैं ना। कमेंटिंग लाइक ही इज कमेंटिंग, शी इज कमेंटिंग, उसके साथ इज एम आर का यूज होता है। यहाँ इज एम आर का यूज तो किया नहीं हुआ। ठीक है, सॉ हिम रशिंग एंड, उसने कमेंट किया तो कमेंटिंग नहीं होगा। सॉ हिम रशिंग एंड कमेंट। अब वन ऑफ द कस्टमर्स की बात हो रही है, मतलब एक कस्टमर, सारे कस्टमर्स में से एक ने उसे भागते हुए देखा और कमेंट किया। सो एक की बात हो रही है, कमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि कमेंट प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वन, वन की बात हो रही है ना, वन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर में से एक ने बोला। तो कमेंट जो है वो प्लूरल वर्ब है। एस और एस के बिना वाला वर्ब प्लूरल वर्ब होता है, हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
तो आंसर या तो कमेंट्स होगा या कमेंटेड। वन ऑफ द कस्टमर्स सॉ हिम रशिंग एंड कमेंट्स और एंड कमेंटेड। अगर आप पूरा पैसेज देखो, पूरा पैसेज पास में जा रहा है। वाज शॉक्ड, कुड नॉट, जस्ट रैन भी पास फॉर्म, तो सारा पास्ट में ये पैसेज जा रहा है, तो ये भी पास्ट टेंस ही आएगा यहाँ भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कमेंटेड। तो एक कस्टमर ने उसे दौड़ते हुए देखा और कमेंट किया, ऐसा बोला। क्या कहा उसने? एवरी डे ही डैश द फॉर्च्यून्स ऑफ मेनी पीपल बट टुडे ही कुडंट सी हिज ओन फ्यूचर। कि रोज वो डैश करता है सबके फॉर्च्यून, सबके भाग्य, पर आज अपना ही भाग्य, अपना ही भविष्य नहीं देख पाया। सो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक 5. टेल, टेल्स, टेलिंग, टोल्ड। टेल, टेल्स, टेलिंग, टोल्ड। एवरी डे ही टेल, देखो ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा। अब टेल तो प्लूरल वर्ब है, सॉरी यस के बिना वाली वर्ब प्लूरल होती है, तो टेल आंसर नहीं हो सकता। टेल्स, टेलिंग, टोल्ड। टोल्ड, अगर टेलिंग टेलिंग देखते तो इज एम आर आना चाहिए, लाइक ही इज टेलिंग, ही इज टेलिंग, दे आर टेलिंग, इज एम आर आता है ना आईएनजी फॉर्म के साथ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। या तो टेल्स या टोल्ड। एवरी डे ही टोल्ड द फॉर्च्यून्स, मतलब बताता था वो रोज सबके भविष्य, या फिर बताता है रोज सबके भविष्य। क्या कमेंट किया होगा उस पर्सन ने कि वे रोज सबके भविष्य बताता है पर आज अपना ही नहीं देख पाया, अपना भविष्य नहीं देख पाया। सो आंसर हो जाएगा टेल्स। देखो एवरी डे का यूज है, ये हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन के साथ वैसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। टोल्ड पास्ट टेंस है, तो आंसर यहाँ पे टेल्स ही होगा। एवरी डे इन वर्ड्स के साथ हमने टेंसेस में भी डिस्कस किया था। ठीक है, एवरीडे रोज की डेली हैबिट बता रहे हैं, तो उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, तो आंसर यहाँ पे टेल्स होगा, प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टेल्स। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड दिस क्लोज टेस्ट। इसी था वैसे थोड़ा ग्रामेटिकल एरर्स थे इसमें, आई होप आपको समझ आया हो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क। Thank you everyone. Please pin me your score. Please like, share and subscribe. Thank you everyone. See you soon.